جامعہ مظہر علوم کا سالانہ جلسہ آج ہے، سالانہ جلسہ آج ہے، ہو گئی رب کی عنایت، رب کا یہ احسان ہے، اور غور کر لو اس چمن کی بنیاد ہے کس نے رکھی، غور کر لو اس چمن کی بنیاد ہے کس نے رکھی، تھا وہ اللہ کا مقرب بندہ مخلص تھا وہ۔ ان اشعار کے ساتھ کہ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، بے تاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، اس سوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ حضور والا سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا شعیب عالم صاحب محتمم جامعہ حامدیہ کلچھینا کہ وہ آئیں، اور یہ مجمع بہت دیر سے منتظر ہے، اپنی پرزور خطابت سے سامعین کو مجلہ مصفح فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے اور دوستوں سے جو کھڑے ہوئے ہیں درخواست کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیں، اور جن حضرات کو کھڑا ہونا ہے وہ باہر چلے جائیں۔ دیکھیے، جو بولنے والا بولتا ہے، کہنے والا کہتا ہے، سنانے والا آپ کو سناتا ہے۔ آپ کی محبت میں یہ علماء تشریف لاتے ہیں، ورنہ کسی کے پاس کہاں اتنا وقت ہے کہ وہ ادھر ادھر جائے۔ ہر آدمی اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے، جہاں تک میرے مائک کی آواز جا رہی ہے، مجھے 15-20 منٹ آپ حضرات کے درمیان تقریباً حائل رہنا ہے۔ تو میں تمام ہی دوستوں سے جو مجھے نظر آ رہے ہیں، کھڑے ہیں،
میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، دوستوں، آپ سنجیدگی سے بیٹھیں اور سنجیدگی کے ساتھ میں سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہلوائیں گے وہ آپ حضرات کو سنائی جائیں گی۔ آپ حضرات کی محبت، آپ حضرات سے پیار، آپ حضرات سے تعلق کی بنیاد پر اکابر علماء بزرگان دین آپ کے بیچ تشریف لاتے ہیں۔ دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ دین کی کچھ باتیں بتا دی جائیں، کہیں انکار کرنے کی وجہ سے، نہ آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے ہمارے بزرگوں کی اور ہمارے اکابر کی اور ہمارے اللہ کے نیک بندوں کی۔ یہ فکر ہے کہ آپ حضرات کو دین کی باتیں سنائی جائیں اور ان دین کی باتوں کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھیں۔ یہ آپ کا پروگرام اس وقت میں اختتام کی منزلیں طے کر رہا ہے اور آخری بیان حضرت مولانا شکیل صاحب جو ہم سب کے محسن و کرم فرما بڑے سردھنے سے تشریف لائے آپ کا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں آپ کے بیچ کچھ باتیں جو دل میں ہیں، جو دل میں لے کر آپ کے درمیان آیا، وہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا پورا معاشرہ، پورا سماج اپنی زندگی کا مقصد جن چیزوں کو سمجھ رہا ہے، جن چیزوں کو خیال کر رہا ہے، ایک باپ یہ سمجھتا ہے کہ تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تیرے یہاں بچوں کی پیدائش ہو، بچوں کی ولادت ہوتی رہے اور ان بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا رہے، یہ تیرے ذمے ہے، اس کے علاوہ تجھے کچھ نہیں کرنا۔ ان بچوں کے کھانے پینے لباس کا انتظام کرنا یہ باپ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، ماں سمجھتی ہے کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو کپڑے دھو کر پہناتی رہوں، کھانا بنا کر کھلاتی رہوں۔ لیکن یاد رکھنا میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، آپ کی زندگی کا مقصد جس کو آپ نے بنایا اور جس کو آپ نے سمجھا ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ کا قرآن مقصد بیان کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس لیے بڑا بھی، چھوٹا بھی، ماں بھی، بیٹی بھی، بہن بھی، تمام کے تمام حضرات یہ جانیں کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں عطا فرمائی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی اللہ نے دی ہے کس کام کے لیے دی ہے۔ آج ہم نے سمجھا ہے کہ بس اپنی زندگی کو موبائلوں کے حوالے کر کے دنیا سے چلے جانا ہے۔ ماں نے سمجھا ہے تو گھر میں اس لیے ہے کہ بچوں کے کھانے پینے کا انتظام تیرے ذمہ ہے، نہ اپنی عبادت کی فکر ہے، نہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر ہے، نہ نوجوانوں کو فکر ہے، نہ بڑوں کو فکر ہے۔ آج سروے کر لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، بجھیڑا نہیں، آپ گلی گلی کوچے کوچے پر آپ سروے کیجئے مسلمانوں کے گاؤں کا، مسلمانوں کے علاقوں کا کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ کتنی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ہمارا شمار جہالت، ہمارا شمار گندگی خلاص کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔
लोग जानते हैं, लोग हमें पहचानते हैं, लोग हमें समझ रहे हैं कि मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं होता है, इसलिए कि मुसलमान ने अपनी जिंदगी का मकसद तालीम को नहीं बनाया, कुरान को नहीं बनाया। जिस पैगंबर पर सबसे पहली वही, जिसको हम मानने वाले, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस प्यारे पैगंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली वही उतारी है। और वो तब वही किस बात की थी? वो वही इस बात की है कि आप पढ़िए अल्लाह के नाम से। पढ़ने की तालीम दी है, पढ़ने को बताया है, पढ़ने की तरफ तरगीब दी गई है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए। आपका बच्चा डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, ग्रेजुएट भी बने, पायलट भी बने, आपका बच्चा जज भी बने, आपका बच्चा आईपीएस भी बने। क्यों नहीं बनाते हैं आप लोग? आप ये समझते हैं कि हमारे बच्चों की कहां नौकरी लगेगी, लेकिन मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, हमारे नौजवान कहां अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एक नौजवान के यहाँ बच्चे की विलादत होती है, उसने समझा है कि बच्चे की विलादत के बाद से तेरे जिम्मे इसकी शादी करना है। 18 साल तक, 20 साल तक कमाता रहे, और कमाने के बाद तेरा काम ये है कि तुझे बच्चे की सिर्फ शादी करनी, न बच्ची को तालीम देनी है, न बच्चों को पढ़ाना है, न बच्चों की ड्रेस का इंतजाम करना है, न बच्चों के कोर्स का इंतजाम करना है। आज मेरी कौम का हाल ये है। आज मेरे नौजवानों को ये तो मालूम है कि किस जगह के होटल की बिरयानी अच्छी है, किस जगह होटल पर अच्छा कौरमा मिलता है, कहां कौन सी चीज उम्दा मिलती है। मेरी कौम और मेरे नौजवान, इनका हाल क्या बन चुका है, किस तरफ जा रहा है, किस नहज को इख्तियार कर रहा है, कौन से तरीके पर चल रहा है। रब ने तुझे इसलिए दुनिया में पैदा नहीं किया है कि तू दुनिया में आने के बाद ये फैसला करे कि कौन से होटल की बिरयानी अच्छी मिलती है, किस ठेले पर अच्छी बिरयानी बनती है। तेरी जिंदगी का मकसद ये है कि तू अपने आप को पढ़ाए, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने बच्चों को तालीम दे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे। तेरी जिंदगी का मकसद है। अगर तुझे एक वक्त खाने को मिल जाए, दूसरे वक्त तुझे खाने को न मिले, भूखा रहे, लेकिन मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो, तालीम सिखाओ। अगर आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अपने बच्चों को तालीम नहीं दी, अपने बच्चों को एजुकेशन आपने नहीं दी, तो याद रखना आने वाला वक्त वो होगा कि आपके बच्चे आप पर जुल्म करेंगे, आप पर ज्यादती करेंगे, आपको सताएंगे, लेकिन आप ये कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। आप अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए, फीस दीजिए और कोर्स दिलाएंगे। आज स्कूल वालों की शिकायत कि हमारे कोर्स के पैसे नहीं देते, फीस नहीं जमा करते। मदरसे वालों की शिकायत, अपने बच्चों की तालीम की फिक्र नहीं करते, बच्चों को माए नहला धुला कर मदरसे नहीं भेजती। ये तमाम का तमाम तबका शिकायत कर रहा है। क्यों कर रहा है, किस बुनियाद पर कर रहा है? जाओ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को देखो, एक दलित बिरादरी से ताल्लुक रखता है, वो नौजवान 400 कमाने वाला, 500 कमाने वाला, मजदूरी करने वाला, बेलदारी करने वाला, दूसरे की मुलाजमत करने वाला, लेकिन जानता है कि तालीम क्या है। अपने बच्चे की तालीम के लिए फिक्रमंद है और अपने बच्चे को एक मजदूर आईपीएस बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, डॉक्टर बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, अपने बच्चे को अच्छा बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन मेरा नौजवान किन चीजों में लगा हुआ है? आज हमारे नौजवानों का, हमारे बड़ों का, हमारे अजीजों का, हमारी माओ का क्या हाल बन चुका है। याद रख लेना, अगर इस माशरे की तबाही को खत्म करना चाहते हो, इस माशरे को अमन और अमान का गहवारा बनाना चाहते हो, तो आपको तालीम से जुड़ना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा,
अपने बच्चों को तालीम देनी होगी। आप अगर एक महीने में एक मर्तबा गोश्त खाएं, आप उस पर इक्तिफा कर लीजिए। रोजाना आपको गोश्त खाना कोई लाजिम और जरूरी नहीं। आप अपने बच्चों को 300 350 की फीस जमा कीजिए और मदरसे में स्कूल में जाकर वक्त पर फीस दीजिए, कोर्स दिलाइए, ड्रेस दिलाइए और अपने बच्चों को दीन के साथ अच्छा डॉक्टर बनाओ, अच्छा इंजीनियर बनाओ, अच्छा ग्रेजुएट बनाओ, अच्छा पायलट बनाओ। सबसे पहले आपका बच्चा कुरान पढ़े, दीन सीखे, दीन समझे, मदरसे में अल्लाह का कलाम पढ़े। आप अपने बच्चों को मेरे भाइयों पढ़ाइए, तालीम से जोड़िए, अच्छा बनाइए। ये आपका बेहतरीन सरमाया होगा। आपने अपनी औलाद को करोड़ का माल दिया, दौलत थी, आपने मकान बंगले प्लॉट छोड़े, लेकिन आपका बच्चा अनपढ़ रहा, गंवार रहा, जाहिल रहा, तो एक दिन वो आएगा कि ये बच्चा जहालत की वजह से शराब का आदी बनेगा, जुए का आदी बनेगा, सट्टे का आदी बन जाएगा और सारी की सारी जायदाद, सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारी दौलत जिसको बाप ने कमाया है, जिसको बाप ने इकट्ठा किया है, जो बाप मजदूरी करता रहा, जो बाप अपनी औलाद की तरक्की के लिए दर की ठोकरें खाता रहा, तिजारत करता रहा, बिजनेस करता रहा, कोशिश ये रही कि मेरा बच्चा, मेरी औलाद तरक्की कर जाए, लेकिन मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, बाप ने नहीं पढ़ाया। वक्त आएगा कि औलाद सब कुछ बर्बाद कर डालेगी। आप अगर अपनी औलाद को और अपने मुस्तकबिल को अच्छा बनाना चाहते हो, होश के नाखून लाओ, समझो, वक्त के तकाज़े को समझो, हालात को समझो, हालात की गंभीरता को समझो, वक्त की नजाकत को जानो। वक्त क्या कहता है, क्या कह रहा है, वक्त का क्या तकाजा है। वक्त का तकाजा है कि आज मुस्लिम का बच्चा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वकील बने। आज वक्त का तकाजा है हमारा बच्चा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बने, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा अच्छी डिग्रियां हासिल करे। ये वक्त की अहम जरूरत है। आज से पहले 15-20 साल पहले चले जाइए, एक हमारे लोग चौधरी साहब हुआ करते, जमींदार ठेकेदार साहब जमीन अपनी चारपाई पर बैठते, कुर्सी पर बैठ जाते, लेकिन कुछ लोग आपके खेतों में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, मुलाजमत करने वाले आपकी चौखट पर आया करते। आप अपनी चारपाई पर उनको नहीं बिठाते, आप उनको अपनी पायती नहीं बिठाते, उस जमीन पर बैठ जाते और जमीन पर बैठने के बाद मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, बड़ी लजाजत से, बड़ी आजिज़ी के साथ अपनी कुछ बातें आपसे कर वो चले जाते। लेकिन वही कौम तालीम से जुड़ी, तालीम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। जो कौम चारपाई पर थी, कुर्सी पर थी, चौधरी अपने आप को कहलाने वाली थी, आज वही कौम एक एक दस्तखत के लिए उनके पास जाती है, उनकी चौखट पर जाती है, उनकी दहलीज पर जाती है। आज आपकी चौधराहट जमीन पर गिर चुकी है और वो कौम जिसने तालीम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया है, वो कौम कुर्सी पर बैठ गई, एसियों में रहने लगी। हमने अपने बच्चों को न तो पढ़ाया, न पढ़ाने की फिक्र की। आप देखिए, दलित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान जो इस दुनिया से चले गए, जो सबसे पहले वजीर कानून बने, भीमराव अंबेडकर कौन थे, किस बिरादरी से ताल्लुक रखते थे? मेरे भाइयों, एक दलित बिरादरी का एक नौजवान था, लेकिन तालीम से जुड़ा, तालीम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, तालीम से अपने ताल्लुक को कायम किया और तालीम से दोस्ती की। तो हाल क्या हुआ कि तहसील में, कोर्ट में, कचहरी में, रास्ते में कोई जगह पर ऐसी नहीं बची कि जहां पर भीमराव अंबेडकर के कानून जो आपने तहरीर फरमाया उसको न माना जा रहा हो। तो इसलिए अगर ये हमारी कौम तालीम में अपनी हिस्सेदारी बनाएगी, तालीम से जुड़ेगी, तालीम से अपने ताल्लुक को मजबूत करेगी, तो मेरे अजीज और दीनी भाइयों, ये कौम तरक्की
तरक्की करेगी, वरना आपकी तबाही, आपकी बर्बादी, आपकी जिल्लत को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती है। जिस कौम का नौजवान मोबाइलों में रातें काट रहा हो, चौराहों पर बैठकर पबजी खेल रहा हो, यूट्यूब देख रहा हो, फेसबुक देख रहा हो, व्हाट्सएप देख रहा हो, जिस कौम की बेटियां बड़े बड़े मोबाइल अपने हाथ में रखकर फिल्में देख रही हो, सीरियल देख रही हो, गाने सुन रही हो, क्या उस कौम की बर्बादी के लिए, क्या उस कौम की तबाही के लिए कुछ और आएगा? नहीं। ए मेरी कौम के नौजवानों, तबाही आपने खरीदी है। आपने अपनी जिंदगी का मकसद इस मोबाइल को बना लिया है। आपने अपनी जिंदगी का मकसद इस मोबाइल को समझ लिया है। ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मेरी कौम के नौजवानों, ये दिल दुखा हुआ है और इस दिल दुखे से आपसे बात कर रहा हूं। ए मेरी अजीजों, मेरे भाइयों, समझो, हालात को समझो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान सिखाओ, दीन सिखाओ, एजुकेशन से जोड़ो, कुरान से जोड़ो, हदीस से जोड़ो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम से जोड़िए अगर आप अपने मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं। वरना कोई दूसरी चीज नहीं कि आपको बुलंदी, आपको रिफात, आपको तरक्की दे सकती हो। सिर्फ तालीम है कि जिससे आपको बुलंदी मिलेगी, हलाल हराम की पहचान आएगी, अच्छे बुरे की पहचान आएगी। आप अपने आप को तालीम से जोड़िए। बार बार कहता हूं, बबांगे तोहल कह रहा हूं, डंके की चोट पर ही बात कह रहा हूं। अगर सचमुच आप इज्जत की जिंदगी के तालिब हैं तो आपको कुरान अपने हाथ में रखना होगा, कुरान से जुड़ना होगा, कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा और इसको अपनी जिंदगी के इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना होगा। तो मैंने कर रहा हूं भैया, 1-2 मिनट रुको। इसलिए मेरे अजीज और दीनी भाइयों, कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है कि हमने कुरान करीम को उतारा है, हम इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला इन हुफ्फाज के जरिए से अल्लाह ने ये दावा किया है कि हम इस कुरान की हिफाजत फरमाएंगे और इस कुरान करीम की अल्लाह ताला कयामत तक हिफाजत फरमाते रहेंगे। रब ने ये दावा किया है और इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये हुफ्फाज की जमात, ये इसकी दलील है, इसके दलाइल है इस आयत के कि अल्लाह ताला ने इनके सीनों में कुरान करीम को महफूज किया है। मालूम इस आयत से ये होता है कि अल्लाह ताला क़यामत तक इस कुरान की हिफाजत का वादा किया है, फरमाते रहेंगे। लेकिन मेरे प्यारों, अगर दुनिया की कोई ताकत ये जाने और ये समझे कि मदारिस इस्लामिया नहीं रहेंगे, ये मदारिस मकातिब नहीं रहेंगे, दीन दुनिया से चला जाएगा, कुरान चला जाएगा। नहीं, मेरे रब ने वादा किया है, मेरा रब ऐलान कर रहा है कि हमने इस कुरान को उतारा है और कयामत तक हम इस कुरान की हिफाजत फरमाते रहेंगे। अल्लाह ताला उसके असबाब पैदा फरमाएंगे। इसलिए मदारिस से जुड़िए, मदारिस से अपने ताल्लुक को कायम कीजिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।